Myself, Ruku Chawla, and I'll be taking plant pathology and microbiology lectures for this JRF Plant Science course. Okay. So a little bit introduction about myself. I was a UG gold medalist and I've done my graduation from SKIU Bikaner. Thereafter, I've scored All India third rank in BHU entrance and 10th rank in pre-PG, and I got admitted in MSc in genetics and plant breeding with All India rank 36, and I was GRF research scholar there. Then I'm currently pursuing PhD. It's my final year from MPUT Udaipur, and I'm under SRF scholarship. I have cleared NET, GATE, CSIR, UGC, GRF as well. Okay. So, in this plant pathology lecture or in the whole this plant pathology class, what are we going to cover? We are going to cover first in important. See, most of the questions I have seen from pathology are based on what? Different introduction on fungi, introduction on bacteria, viruses, prions, right? And most focused is fungi, bacteria, and viruses. Okay, so we need to focus on these three: fungi, bacteria, and viruses. These are the major parts where questions are being asked. Like in fungi, if we see, there will be questions on what is fungi, right? What are different characteristics of fungi? Then a lot of questions come from the sexual and asexual reproduction from fungi, right? Different type of spores that are being formed. So these type of questions are being asked from fungi. When we talk about virus, classification of virus is very important, and then different, like whether this particular virus is single stranded, whether this virus is double stranded DNA, what type of viruses are there that infect plants. Okay, so those type of questions are being asked. And in bacteria, different structures of bacteria are being asked, right? Then also a little bit questions about prion, viroid, mycoplasma. Specifically, I've seen questions that which type of prion will infect the particular pathogen, right? Which prion or viroid act as pathogen for infection of plants. So that type of questions are being asked. Prions, viroid, mycoplasma, majorly from fungi and virus. Okay. Then we come to plant diseases and their life cycle. When we talk about plant disease and the life cycle, we have to focus on what? We have to focus on smut, basically smut and rust. Okay, these two are very important plant diseases. On rust also, different whole life cycle we have to go through the rust. What type of spores are being formed? What are particular conditions? At what temperature? So, like during the GRF I gave, it was 2019. At that time, three questions were asked from rust only in this within the same paper. So we have to focus on rust. Then smut also, since smut is being caused by a lot of different causal organisms, and some smut like covered smut. Okay, then कवर्ड आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए. हाँ जी, तो plant diseases, right? And then we have to go through different life cycles of ergot, then claviceps that is being caused. So different powdery mildew, downy mildew, these life cycles we have to cover. And lastly, we'll be studying about disease management. Okay, in disease management, now we know that integrated disease management has come. So how biological system are being incorporated additional to chemicals, and especially in disease management now what comes is that which type of chemicals are being used latest. Okay, in there are different classifications, right, of fungicides or bactericides, whatever. In those classifications, now questions are being asked on the latest used fungicides which are being now discovered and now that has been used, plus those fungicides that have been banned. Okay, so we have to focus on that part. Now, how to study, what you have to study, and why
you have to study. See, before moving forward on today's lecture, I would like to tell you that how you have to study is that for plant GRF, you have to focus on majorly first on genetics. Okay, genetics is the major part. Then you have to focus on plant pathology. Now earlier in earlier papers you have seen that minor questions used to come from plant pathology, but now trend has been changed. Major questions are being asked from plant pathology as well. So now it has been a major subject, so you have to focus on plant pathology, right? Then after that you have to focus on breeding. Then some assistant subjects like microbiology questions are being asked. You have to cover plant physiology portion, okay, seed science and technology portion. Sometimes you'll see in some papers seed science has been asked a lot, okay. Plus you have to focus on what the intellectual property right portion of breeding. That is also important. If they are going to ask questions on that, there will be some tough questions. So you have to focus on different rights, different acts, different seed acts that has been made, okay. So plant science, when you talk about plant science, you have to cover lots of subjects. The thing is, you have to maintain consistency on all the subjects, okay. Now what you have to study when talking about plant pathology, three books I will suggest you. One is Plant Pathology at a Glance by Bhattacharya. Then Plant Pathology, I've shown the cover page of these books. This is by Kam and Man. And lastly, for Dubey book, Modern Plant Pathology. For diseases, cover this book. Okay, it is very nice book. Especially, I've read a smut portion from this book, and questions were being asked from this. Okay, the life cycles of plant disease are very easily and very nicely explained in this book. Then Plant Pathology at a Glance, especially in other exams also. Like if you are also preparing, you must be preparing for state exams also. So for state exams, you'll be seeing direct questions from Bhattacharya book. Okay, and when you talk about Calm and Man, there are certain tables of classification of viruses, and that some theoretical part is being there at the last of this competitive version. So you have to go through to that, okay. Now how you should study is that first, of course, since this class is there, so that will help you a lot. आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मटेरियल है, कहाँ से आपको पढ़ना है, टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे, राइट। तो वो आपका 80% तो वही कवर कर लेगा। बट उसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाओ, राइट। जितना आप लिखोगे आपको उतना ही ध्यान रहेगा। प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ओके। जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगेगा। बट आजकल क्या है, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन स्टेटमेंट वाइज, है ना। पहले सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। अब आजकल मार्केट में अभी ऐसी बुक्स अवेलेबल नहीं है जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो। तो आपको इसीलिए मैं बोलूंगी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वो टिक वाले क्वेश्चंस जिसमें एक एक ऑप्शन है और उसी में से चूज करना है कि रस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म है, वैसे क्वेश्चंस आपको 10 मैक्सिमम 10 मिलेंगे पेपर में। अब आपको क्या चाहिए, आपका थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जब आप सब बीएससी में होगे, तो आप जब अपना कोर्स कर रहे हो तो उस कोर्स बुक्स को अच्छे से पढ़ो, ओके। So let's start. First, we are going to start with fungi. Okay, in fungi, we are going to discuss about the basic fungi. What are different characteristics of fungi? Along with that, we are going to study that what are the certain modifications. What is mycelium? What is hyphae? Okay, so introduction to fungi will be covering in this. Okay, see, अगर आप fungi को, ये जो भी आपके organisms है ना, जैसे fungi हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, अगर आप इनका बेसिक अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे अगर आपको पता है कि फंजाई में असेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से, उसका क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया है, तो बाद में आप जब भी लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, जो हम प्लांट पैथोलॉजी डिजीज का पोर्शन पे जाते हैं, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधे प्लांट डिजीज पे गए, लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्स के नाम आ रहे हैं, कभी असेक्सुअल शुरू हो रही है, सेक्सुअल साइकिल शुरू हो रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर होंगे ना, तो दैट विल बिकम वेरी इजी, ओके। So let's start with fungi. When I talk about fungi, you have to focus on these are eukaryotic, okay? Bacteria,
प्रोटिस्टा देन फंजाई। सो जब ये धीरे धीरे एंसेस्ट्री या इवोल्यूशन जैसे बढ़ा तो फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर फंजाई, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कैसे, इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है फंजाई आर व्हाट, दीज आर यूकैरियोटिक, दीज आर अक्लोरोफिलस, राइट। दीज आर, फंजाई का नेचर क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के नहीं है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, है ना। दीज आर अक्लोरोफिलस, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सो यूकैरियोटिक, अक्लोरोफिलस एंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, एनीबडी नोज यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल कोई बताएगा मुझे? ईस्ट। वेरी गुड, राइट। तो ईस्ट किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिसेलुलर फंजाई का। सो फंजाई के अंदर हम जैसे हम हायर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, मोस्टली विल बी मल्टी सेलुलर बट also unicellular. Then we know that fungi can be reproduced through asexual or sexual spores, ठीक है। Now we'll discuss some characteristics of fungi. ये characteristics आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फंजाई, ओके। सो उसमें जब स्टेटमेंट्स आते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है अनटिल अनलेस हमने ध्यान से उन स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा हो, ओके। ऑल आर यूकैरियोटिक, जब भी पढ़ो कहीं पर आपको ऑल दिखे ना तो उसको हाईलाइट करो। ऑल मतलब होता है कि एक्सेप्शन नहीं है, ओके। और ऑल वर्ड पे आप ध्यान जाना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज ऑल आर यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक का जो अब यूकैरियोटिक है तो उसमें वही जो प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो मेम्ब्रेड हो जाएगा, देन उसके अंदर क्या ऑर्गेनल्स जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स वो सब प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो फर्स्ट इज यूकैरियोटिक, देन सेकेंड नेचर ऑफ फंजाई इज दीज आर फिलामेंटस। फिलामेंटस क्या हुआ, जो फंजाई है वो कैसी होती है, जैसे हाँ, तो ये देखो फंजाई के अंदर ऐसा आपको उसके अंदर आपको फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे लाइक दिस। इन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं हम, हाइफी बोलते हैं, ओके। ये ऐसे पूरा ऐसे आपको चेन से मिलेगी, थ्रेड शेप में ऐसे मिलेगा। और ये फिलामेंट सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इन पूरा जो एक नेटवर्क है, जब मैं इसको ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, ओके। उस पूरे नेटवर्क को हम बोलेंगे माइसीलियम। तो हमने बोल दिया क्या कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। लेकिन जो इंडिविजुअल हाई को क्या बोलते हैं, फिलामेंटस नेचर का। अब हाइफी है यहाँ पर तो उसके अंदर यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होंगे, राइट। कंप्लीट सेप्टा या नहीं, और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो दिस इज, ये जो एक आइडियल, जब आप फंजाई को इमेजिन करो तो आपके माइंड में ऐसे हाइफी और माइसीलियम आ जाना चाहिए, ठीक है। देन सम यूनिसेलुलर फंजाई जो कि क्या है, ईस्ट, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सेल वॉल है फंजाई की वो किससे बनी होती है, काइटिन की, ओके। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मोस्टली काइटिन की। लेकिन जो लोअर क्लास, हम जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे देन आई टेल यू, जैसे ऊमाइसिटीज है ना, ऊमाइसिटीज हो गई, काइट्राइडोमाइसिटीज हो गई, उनके अंदर आपको क्या दिखेगा कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की प्रेजेंट है। बट जब हम हायर क्लासिफिकेशन में जाएंगे फंजाई के ही, जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गई है ना, बेसिडियोमाइसिटीज हो गई, तब आपको काइटिन मिलेगा। बट अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि काइटिन एंड ग्लूकन्स जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ सेल वॉल, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक किसका हो गया, दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ओके। देन वी नो दैट फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे कर सकती है, इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल स्पोर्स ऑल्सो एंड असेक्सुअल स्पोर्स ऑल्सो। इस पूरे पे एक बहुत अच्छे से हम लेक्चर लेंगे, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, व्हाट आर डिफरेंट स्पोर्स, कौन सा क्या फॉर्म करता है, किस स्पोर का क्या फंक्शन, ओके। ऑल अगेन एज आई स्टेटेड, ऑल है तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे, ऑल आर क्लोरोफिल, अ क्लोरोफिलस, दैट इज
दे डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर मैंने आपको सिंपल ये टर्म जो ये की है, इनको आप शॉर्ट में हमेशा ध्यान रखो। देखो एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यूज में भी अगर आप देखोगे या किसी में भी, एक होता है आपको टर्म पता है, राइट। अब जैसे हाइफी है, आपने माइंड में जो मैंने डायग्राम बनाया वो इमेजिन कर लिया, राइट। बट आपको बोलना नहीं आ रहा, आपको उसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं पता। साइंस में क्या होता है, हमें समझ आना जरूरी होता है, इसके साथ साथ हमें उसके पर्टिकुलर टर्म्स पता होने जरूरी हैं। जैसे अगर कोई पूछे प्लांट ब्रीडिंग है, तो आपको प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पूरी पता होनी चाहिए, राइट। दैट इज ह्यूमन डायरेक्टेड इवोल्यूशन। उसी तरह से अब अगर हाइफी, माइसीलियम और सोमा, ये तीनों टर्म्स है, इनका क्या डेफिनेशन है। व्हेन आई टॉक अबाउट सोमा, तो ये वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस है, ओके। देन हाइफी का मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर फिलामेंट, और जब नेटवर्क ऑफ हाइफी बन जाए दैट इज कॉल्ड एज द माइसीलियम, ठीक है। सो ये तीन ध्यान रखना, इनकी क्या टर्म्स है। देन फंजाई आर कीमो हिट्रोट्रॉफिक, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, दे विल यूटिलाइज द सोर्स ऑफ कार्बन, कहीं से वो एनर्जी लेंगे एंड देन दे विल मेक फूड फॉर देमसेल्फ, दे विल टेक फूड फ्रॉम आउटर साइड, और फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी जो उन्हें एनर्जी देगी, ओके। हिट्रोट्रॉफिक नेचर मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ओके। नाउ स्टोरेज ऑफ, जो स्टोरेज फूड है फंजाई का, वो किसके अंदर होता है, यू हैव टू रिमेम्बर मोस्टली ग्लाइकोजन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं आपको बताया था सेल वॉल पे क्वेश्चन आया हुआ है कि काइटिन है, वैसे ही फंजाई के जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है वो कौन सा होता है, दैट इज ग्लाइकोजन। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना, ओके। देन दे मे बी फ्री लिविंग, ऑफ कोर्स है, और वो एसोसिएशन भी बना सकती है, ओके। किसी को एसोसिएशन का एग्जाम्पल पता है फंजाई का? हेलो, ओके, नो प्रॉब्लम, देखिए आना, वेरी इजी एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ओके। बीच में Human अगर light. किसी को, यस वेरी गुड, लाइकन, कॉमन, ओके। तो फंगाई कैन बी, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, या फिर algae के साथ अगर एसोसिएट कर लें देन दे कैन फॉर्म लाइकन। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू थैलिस। थैलिस क्या होता है, अभी मैंने बताया कि थैलिस क्या है, जो वेजिटेटिव बॉडी, पूरी बॉडी जो है, हम उसके अंदर स्पोर्स को काउंट कर रहे हैं, उसका जो पोर्शन है वेजिटेटिव पोर्शन, देखो कब बनेगा, वेजिटेटिव पोर्शन बनेगा स्टार्टिंग में, ओके। जो मेन जो फंजाई है, जैसे इसका स्पोर है, एक फंजाई है, राइट, स्पोर बनेगा, सिंपल, उसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने से स्पोर के अंदर से क्या निकलने शुरू होती है, हाइफी का ग्रोथ होनी शुरू होती है। दिस विल मेक लॉन्गिट्यूडनल हाइफी। अब ये हाइफी पूरा एक नेटवर्क बनाएगा, राइट, लाइक दिस। और इस पूरा नेटवर्क, जब हम इसको वेजिटेटिव ग्रोथ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तब हम इसको थैलिस बोलेंगे या फिर सोमा बोलेंगे, ओके। फिर लेटर स्टेज में वापस इसको स्पोर बनाने हैं, तो ये क्या अंडरग्रो करेगा, इट विल अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, या तो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे या असेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, ओके। सो दिस इज हाउ द साइकिल ऑफ फंजाई रिपीट्स इटसेल्फ, ओके। Now, important thing to note here is that thallus can be of two types, ठीक है। ये बहुत बेसिक है और क्वेश्चन भी आता है, यूकार्पिक थैलेस एंड अदर वन इज होलोकार्पिक, ठीक है। होलो वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। तो यूकार्पिक थैलेस क्या होता है, जिसके अंदर जो थैलेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो बॉडी है थैलेस की, उसके बाद आफ्टर अ टाइम रिप्रोडक्शन कब शुरू होगा, व्हेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, है ना। जब फेवरेबल सुटेबल कंडीशन आई तब रिप्रोडक्शन वो करना शुरू करेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो फॉर्मेशन करेगा। सो इफ अगर एक थैलिस है वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव में भी और रिप्रोडक्टिव में भी, तो हम उसको क्या कह देंगे, यूकार्पिक थैलिस, ओके। इसका एग्जांपल क्या है, पीथियन, ठीक है। Now, next type of
सेकेंड टाइप ऑफ थैलेस इज होलोकार्पिक। होलो का मतलब मैंने अभी बताया कंप्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर कुछ भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। एक आप जो थैलेस दिख रही है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वेदर अगर वो स्टार्टिंग का फेज है तो आपको वो वेजिटेटिव पार्ट ही दिखेगा होलोकार्पिक में, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तो ऐसा नहीं होगा। जैसे सपोज यहाँ पे थैलेस में क्या है, अगर हम यूकार्पिक थैलेस की बात कर रहे हैं तो मैंने मान लो ये फंगस का एक पर्टिकुलर हाइफी है, ठीक है। और अब जो स्टेज है मेरे पास फेवरेबल कंडीशन नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हाइफी बनाना शुरू करेगा और यहाँ से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट वो शुरू कर देगा, ठीक है। वो लिमिट कर लेगा तो कि ये वाला पोर्शन तो वेजिटेटिव है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ साथ में ही वो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा, राइट। सेक्सुअल स्पोर के लिए वो स्पोरेंजियम या पूरा जो भी उसका कार्प फ्रूटिंग बॉडी है वो बनाना वो शुरू कर देगा, ओके। सो वी कैन सी बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव स्टेट टुगेदर इन वन थैलिस। हाउएवर व्हेन आई टॉक अबाउट होलोकार्पिक तो क्या होगा, ये कंप्लीट जो फंगस है वो कंप्लीट फंगस will then convert into reproductive structure, okay. The vegetative portion will be over and that will completely convert into reproductive structure। और इसका एग्जाम्पल वही जो यूनिसेलुलर हमने देखा था उसमें आपको, आप तभी तो देखो वो यूनिसेलुलर है, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या है वेजिटेटिव है और कौन सा रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। एग्जाम में ये सिंपल इस पे आता है तो सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी, ओके, दैट व्हाट इज यूकार्पिक थैलेस और व्हाट इज होलोकार्पिक थैलेस, ओके। नाउ दीज आर द, ये तीन टर्म्स है। यूनिसेलुलर मैंने बता दिया, मल्टी सेलुलर भी मैंने बता दिया। एक और टर्म होती है प्लाज्मोडियम, ओके। प्लाज्मोडियम क्या है, पहले इसको लेके काफी कंफ्यूजन था दैट वेदर टू कीप इट इन प्रोटिस्टा और वेदर टू कीप इट इन फंजाई, ओके। बट लेटेस्ट हमने इसको किसमें कर दिया, लोअर फंजाई के अंदर। ओमाइसिटीज और उसके जो मेन क्लासिफिकेशन है, उसका क्लासिफिकेशन जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे तो उसमें जैसे सबसे लोअर क्लास में क्या आ जाता है, ओमाइसिटीज या फिर काइटाइड्रोमाइसिटीज, है ना। देन लास्ट में जाइगोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एक क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे ये पूरा फंजाई है। बट एक फंजाई का हम क्या लिखते हैं, प्रोटोजोन लाइक फंजाई, उसके अंदर आ जाता है ये प्लाज्मोडियम, ओके। प्लाज्मोडियम, फिर इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियोफोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिक है ये। आप आगे जाके इनके पूरे हम लाइफ साइकिल देखेंगे, कौन सी डिजीज कॉज, सब कुछ देखेंगे, ओके। प्लाज्मोडियम को क्या ध्यान रखना है, एक्चुअली क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कि प्लाज्मा ना, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल वॉल नहीं दिखेगी आपको। मान लो ऐसे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर बस क्या है, लिक्विड सा, ऐसे लिक्विड मास भरा हुआ है, और इनका मूवमेंट कैसा, आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा ना, कोई स्ट्रक्चरलेस होता है। सेल वॉल अगर नहीं होगी तो हमें पता है कि इंटेग्रिटी ऑफ सेल होगी नहीं, है ना। अगर सेल वॉल नहीं है तो उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। तो सो दैट पर्टिकुलर ये जो मास ऑफ सेल्स हैं ये बाद में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। अब फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, राइट। अब इन सब ने फ्यूज कर लिया तो लास्ट में हमें एक ऐसे शेपलेस और मल्टी न्यूक्लियड, ऐसे ये न्यूक्लियस है, ओके। मल्टी न्यूक्लिएट हमें एक मास सा मिल जाएगा जो कि अमीबॉइड फैशन में मूव करता है एंड इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, ठीक है। और फिर ये कैसे फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। ओके, सो नाउ ये डायग्राम है, देखो अगेन आई एम स्टेटिंग, जब भी पढ़ो स्पेशली पैथोलॉजी में तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, है ना। जब भी आपको पढ़ना है, जैसे लाइफ साइकिल देख रहे हो तो लाइफ साइकिल पढ़ोगे, अगर थ्योरेटिकल पढ़ोगे ना तो याद करना मुश्किल हो जाता है। गूगल करो, गूगल करके पूरी लाइफ साइकिल को अपने डायग्रामेटिकली हाथ से बनाओ। जो भी स्पोज देख रहे हो, डिफरेंट स्पोज देख रहे हो, मॉडिफिकेशन देख रहे हो, उन सबको क्या करो, उनको पढ़ो, उनको डायग्राम देखो, उससे आपको कभी भी नहीं भूलोगे, ओके। सो ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया, ये पर्टिकुलर क्या है, ये पूरा नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर फिलामेंट के बारे में जब हम बात कर लें तो दैट इज हाइफी, ओके। उसके बाद फिलामेंट्स,
अब ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो फिलामेंट्स है ना, अब यहाँ पे देखो जूम करोगे तो ये जो बीच में है दीज आर व्हाट, दीज आर न्यूक्लियाई, और इनको जो क्रॉस सेप्टा बना हुआ है दैट इज सेप्टा। ओके, सेप्टा क्या है, जैसे यहाँ पे देखो जो पूरा हाइफी है फिलामेंट्स उनको डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, दैट इज सेप्टा। अब सेप्टा कैन बी कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से वो ब्लॉक कर रहा है एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से। ओके, और इट कैन बी इनकम्प्लीट। ओके, हो सकता है बीच में स्पेस रह जाए फॉर व्हाट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, और इट कैन बी विदाउट सेप्टा ऑल्सो। So there will be different types of filaments of hyphae, whether the septa is present, whether the septa is complete or incomplete, और वेदर इट इज विदाउट सेप्टा। इफ इट इज विदाउट सेप्टा तो आपको पता है क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं जूम करूं तो ये विद सेप्टा है, तो एक जो सेल का कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है, आपको एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है ना। बट अगर यहाँ से मैं ये सेप्टा हटा दूं तो क्या होगा, इस एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको मल्टी न्यूक्लियस दिखेंगे। तो उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, सीनोसिटिक स्टेज। ओके, असेप्टेट और सीनोसिटिक स्टेज जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस हो जाता है। ओके, सो दिस इज जो मैंने आपको बेसिक मतलब डायग्राम मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको थोड़ा सा और इजीली समझ आ जाए। यही जो मैंने आपको बताया था कि एक जो स्पोर है जैसे ही वो जर्मिनेट करेगा तो उसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, वो एक हाइफी को बनाएगा। हाइफी मल्टीपल हाइफी नेटवर्क बनाकर एक माइसीलियम को बनाएंगे। अब बॉडी जो वेजिटेटिव पार्ट है, ये जो हम कहते हैं या फिर थैलेस है, अब थैलेस ऑफ फंजाई तो रेडी हो गया। अब उसका मेन काम क्या है, ऑफ कोर्स उसको सरवाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और क्या जब फेवरेबल स्टेट होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए उसने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई करता है इसी माइसीलियम को। वो हम एंड ऑफ दिस लेक्चर पढ़ेंगे कि कैसे माइसीलियम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाती है थ्रू दिट्स मॉडिफिकेशन। ओके, सो हाइफी, अब हाइफी के अंदर वही जो मैं आपको सेप्टा बता रही थी, अगर हम सेप्टेट हाइफी कह दें तो सिंपल, दिस इज अ हाइफी एंड सेप्टेट मतलब ये मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट्स को, पूरी हाइफी को मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज सेप्टेट हाइफी। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट अ सेप्टेट हाइफी तो ये हाइफी है, अब उसके अंदर न्यूक्लियस तो है 1 और 2, जितने भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेप्टेट हाइफी एंड इट इज सीनोसिटिक इन नेचर। सीनोसिटिक वर्ड याद रखना, जो लोअर फंजाई होती है जैसे oomaisites है, काइटाइड्रो वाला है, जाइगोमाइसिटीज है, इसका जब हम लोअर फंजाई का एक बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक तो सेलुलोज वाला हो गया, प्लस क्या ये सीनोसिटिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेप्टा नहीं होता। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सो बी केयरफुल। ओके, नाउ जो सेप्टा है, देखो एक ही सेप्टा है, उसके अलग अलग डिपेंडिंग ऑन कि क्या फंक्शन वो कर रहा है, हमने उसको अलग अलग से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने सेप्टा कंप्लीट बना दिया तो मैंने बोल दिया कि वो कंप्लीट सेप्टा है। ठीक है, अगर मैंने उसके बीच में स्पेस दे दिया, जैसे सपोज फॉर इंस्टेंस ये है और मैंने यहाँ पर ऐसे एक पोर बना दिया बीच में, ठीक है, लाइक दिस, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट सेप्टा हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं है, और इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो होता रहेगा न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, सो दिस इज इनकम्प्लीट सेप्टा। उसी तरह से एक टर्म आती है प्राइमरी सेप्टा और एक टर्म आती है एडवेंटिशियस या फिर सेकेंडरी सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा क्या होता है, जो इनिशियल स्टेजेस है ना, जैसे सेल बनी, अब हमें पता है कि सेल है, कोई भी एक सेल है, उसके अंदर जैसे डिवीजन होगा ना, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बने, देन उसके बाद वो साइटोप्लाज्मिक जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन होगा और सेलुलर डिवीजन होगा, तो दो सेल बन गए और उसमें जो सेप्टा बन गया दैट इज प्राइमरी सेप्टा। ठीक है, सिंपल, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल है, अगर उससे कोई सेप्टा बन रहा है तो उसको हम प्राइमरी सेप्टा बोलते हैं। उसके साथ क्या आता है, एडवेंटिशियस सेप्टा। एडवेंटिशियस सेप्टा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेप्टा। ये कब बनता है, ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। कब, जब या तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है या फंजाई को खुद को रिपेयर करना है। ओके, ऐसे स्टेजेस में वो अपनी ही हाइफी में
यहाँ पर एक एक्सटीरियर पोर्शन पर डीलिमिट कर देंगे। डीलिमिट मतलब अपनी बॉडी से एक अलग, जब उसको ऑर्गन बनाना है तो उसको अलग करने के लिए वो एक सेप्टा बनाएगा, और वो सेप्टा क्या कहलाएगा, एडवेंटिशियस और सेकेंडरी सेप्टा। अब अगर उसने सपोज इस सेल को उसने अपने आप से अलग किया है, तो ये यहाँ पे जो सेप्टा बन गया एडवेंटिशियस हो गया। अब ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये या तो क्या कर सकती है, सेक्स ऑर्गन्स मींस जाके फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल स्पोर, इसका फॉर्मेशन कर सकती है, या फिर अगर हम ये बोलें कि दिस पार्ट को हमें क्या चाहिए, रिपेयर चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर पोर्शन है अपना जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिव करेगा, तो इस पार्ट को कर देगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कॉम्प्लेक्स सेप्टा, जो कि आप लोगों ने सुना होगा डॉलीपो मतलब इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन सम कोर्सेज ड्यूरिंग योर बीएससी, डॉलीपोर सेप्टा, जो कि किसके अंदर देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। डॉलीपोर सेप्टा पे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं, तो पहले तो बेसिक कि ऐसे आ जाएगा कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कौन सा सेप्टा है, तो डॉलीपोर सेप्टा नाम ध्यान रखो किसके अंदर प्रेजेंट है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये देखो यहाँ पे ये सेप्टा है, ये सेप्टा नॉर्मली से अलग है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये यहाँ पे एक तो देखो ये इनकम्प्लीट सेप्टा है ना, पूरा ये कवर नहीं हुआ है, पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देन इसके अंदर जो बीच का पोर्शन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ओके, और उस स्वेलिंग या उस स्वेलिंग के आसपास के जो एरिया है उसको हम पेरेंथोजोम कहते हैं। तो और ये सेप्टा क्या है, इस सेप्टा को हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। सो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू रिमेंबर डॉलीपोर सेप्टम इज प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर एक स्वेलिंग हो जाती है पोर के आसपास, एंड दैट स्पेस अराउंड दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड एज पेरेंथोजोम। पेरेंथोजोम पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सी अब अगर कोई पूछे कि ये डॉलीपोर सेप्टा क्यों बना इस नेचर में ना, सो सी द डॉलीपोर सेप्टा से क्या फायदा होता है, एक तो देखो ये एक हायर जो फंजाई है, फंजाई का हाईएस्ट जो क्लासिफिकेशन, जितना हम हायर जाते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन में, उतने उसके अंदर आपको कौन से करेक्टर्स दिखेंगे जो कि सर्वाइबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि वो इवोल्यूशन में आगे की तरफ है। सो डॉलीपोर सेप्टा क्या हेल्प करता है, बिकॉज इसके अंदर एक स्वेलिंग पोर्शन है, प्लस क्या है, स्पेस है, पोर है, पोर का साइज बड़ा है, राइट। दिस पोर विल हेल्प इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके फ्लो को हेल्प करता है, प्लस इसको स्टेबल बनाता है स्ट्रक्चर को बिकॉज ऑफ इट्स स्वेलिंग। ओके, so this is the nature or the quality that has been achieved by the basidiomycetes. नाउ ये डायग्राम में वही जो मैंने आपको सेप्टेट वाला बताया था, ये सी दीज आर व्हाट, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर पोज आपको दिख रहे हैं, ये सिनोसिटिक हाइफी बिकॉज देर आर मल्टी न्यूक्लिएट, और अगर सेप्टेट हाइफी है तो यहाँ पर अब इसमें डिवीजन जैसे जैसे होगा, वो अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब इसके अंदर जस्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, एंड आफ्टर देन दे विल बी क्रिएशन ऑफ अ सेप्टा। ओके, okay, so moving forward on the terms, that is ectophytic fungus and endophytic fungus. ठीक है, ये क्या फंगस है, सिंपल देखो टर्म पे जाओ, एक्टो मतलब बाहर है ना, और एंडो मतलब अंदर, राइट। सो सिंपल हमें पता चल गया कि हमें डेफिनेशन से ही कि ऐसी फंगस दैट इज गोइंग टू इनसाइड द सेल ऑफ द पर्टिकुलर, दैट इज एंडोफाइटिक, है ना। और अगर लेयर तक ही इन्फेक्ट करती है तो वो फंगस हो गई, एक्टोफाइटिस। ठीक है, अब एंडोफाइटिस वो तरह की हो सकती है। देखो हमें पता है कि जो होस्ट है ना, अब ये मान लो प्लांट की लीफ समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर व्हाट, दीज आर सेल्स, है ना, ये हम सेल्स बना लेते हैं, ये लीफ के सेल्स हैं। अब अगर तो इन दिस इज गोइंग टू इन्फेक्ट इनसाइड द सेल, ओके, तब हम उसको क्या बोल देंगे, विच इज पेन, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर, है ना। इनसाइड द सेल अगर जा रहा है और सीधे वो प्रोटो सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, तो अगर उस प्रोटोप्लाज्म से वो न्यूट्रिएंट ले रही है फंगस, दैट इज
इंट्रासेलुलर फंगस, राइट। एंड इफ इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, तो अगर वो दो सेल के बीच में करके न्यूट्रिशन ले रही है, देन इट इज इंटरसेलुलर फंगस। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, एक तो definition के फॉर्म में याद रखो व्हाट इज एक्टो व्हाट इज एंडो, इंपॉर्टेंट इज इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एंडो एक्टोफाइटिक फंगस का एग्जाम्पल आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जैसे पाउडर मिल्ड्यू है। पाउडर मिल्ड्यू के आप सिम्टम्स देखोगे कैसे आते हैं, यूजुअली ऊपर लीफ के ऊपर पाउडरी ग्रोथ आपको दिखती है ना, व्हाइटिश पाउडरी पाउडर, सो दैट इज एक्टोफाइट फंगस। ओके, जबकि हम एंडोफाइटिक फंगस के बारे में देखेंगे तो खुद सोचो, अगर वो इंटीरियर ही इफेक्ट कर रहा है, डीप सेल में इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमें उसके जो सिम्टम्स हैं वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं दिखेंगे, हमें वो पूरे प्लांट में दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो अगर सेल इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे सिस्टमिक इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर एंडोफाइटिक फंगस अगर वेस्कुलर में हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूजेरियम है ना, जो विल्ट कॉज करता है, तो विल्ट में आपने देखा है कि पूरा जो जाइलम है उस पे उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो जाइलम वो कब इन्फेक्ट करेगा, अगर वो डीप सेल के अंदर उसकी ग्रोथ बन रही है। ओके, सो अगर मैं एक्टोफाइटिक फंगस के बारे में बात करूं तो मीडियम एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है पाउडर मिल्ड्यू का ही, और दूसरा क्या है एंडोफाइटिक फंगस। एंडोफाइटिक फंगस में इंट्रासेलुलर का जो आइडियल एग्जांपल है वैक्सीनिया, राइट। इंट्रासेलुलर का जो स्टिलागो हो गया, ठीक है, स्मट कॉज करते हैं, और वेस्कुलर का जो मैंने अभी आपको बताया जैसे फ्यूजेरियम हो गया। ओके, एग्जाम में दो क्वेश्चन क्या है, जैसे पाउडर मिल्ड्यू है, मोस्टली पाउडर मिल्ड्यू मैंने आपको क्या बताया था, एक्टोफाइटिक है। हम पाउडर मिल्ड्यू कॉज करने के बहुत सारे पैथोजेंस है ना, ईडेम हो गया, लेवियूला, उसका पूरा एक क्लास पूरा डिफरेंट है, जो अलग अलग टाइप ऑफ पाउडर मिल्ड्यू कॉज करता है। सीरियल्स में कोई और कॉज करेगा, और फ्रूट्स में कोई और आप देखोगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सी। हाँ जी, मैम एक डाउट था। ओके, तो मैम हाँ जी, मैम बेसिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगल थैलस क्या होगा? बेसिक सो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगल उसको थैलस। उसको हम सोमा बोलेंगे, क्या मैम? सोमा, SOMA। जी जी मैम। और एक जो हाँ जी, स्पोर्स के बारे में बोले मैम, जो थिक वॉल्ड स्पोर्स हाँ होता है जी, जो प्रोड्यूस्ड बाय थिकनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्स है, तो हाँ वो क्या जी। होता है मैम? इंडिविजुअल सेल्स की थिकनिंग से मतलब, मैम जो मतलब है कि थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय थिकनिंग हाँ ऑफ जी, इंडिविजुअल सेल्स ऑफ फंगल माइसेलियम आर नोन एज डैश। ओके, सी जब थिकनिंग ऑफ जो माइसीलियम के सेल्स है ना, उसकी थिकनिंग का होगी जब रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनने शुरू होंगे। थिकनिंग का मेन रोल ही वो है, जब थिकनिंग होती है तो उसके लिए कौन से क्लेमाइडोस्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ दिस, तो उसका क्लेमाइडोस्पोर सही आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसके हम आगे जो एंड लेक्चर है उसके अंदर हम और भी मॉडिफिकेशंस देखेंगे, जो कि माइसीलियम के वेजिटेटिव पार्ट जो इंडिविजुअल सेल्स है उसी मतलब मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जैसे सोमा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया ना, स्ट्रोमा जो है जो कि आप डिस्पोज बनाएंगे, या राइजोमोर्फ या राइजोइड्स आप देखोगे, ये सारे जो है वो अलग अलग मॉडिफिकेशन है इसी सेल्स के ही मॉडिफिकेशन से। बट जब हम थिकनिंग वर्ड यूज करते हैं तो जो डायरेक्ट जो सबसे पहले करेक्ट आंसर आता है दैट इज क्लेमाइडोस्पोर्स, जो कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ही बनाता है। जी मैम। और मैम जो कॉम्पैक्ट मैक्स हार्ड हाइपे का फॉर्म करता है वो स्क्लेरोशियम है ना? हाँ जी, वो स्क्लेरोशियम भी हो सकता है और कॉम्पैक्ट मास स्ट्रोमा भी हो सकता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट मास जो है स्ट्रोमा भी पहले बनाता है, अगर वो कुशन शेप में कॉम्पैक्ट मास बना रहा है तो वो स्ट्रोमा होगा, बट अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो रूट लाइक हो रहा है देन दैट विल बी राइजोमॉर्फ। जी मैम। जी, मैम ओके, और जो हाँ जी, पियर्सिंग पियर्सिंग ऑर्गन फंगी क्या होता है? वो हॉस्टोरिया होता है ना? वो अभी ये आगे की स्लाइड्स में सारा आएगा, हॉस्टोरिया, एप्रोसोरिया, ये सारे क्या बनते हैं और ये क्या आगे फॉर्म करते हैं, ये मैं आपको भी इसी में आगे पढ़ाती हूँ। जी जी मैम।
ओके, हाँ जी। मैं बोल रही थी लेवियूला जो है, हाँ मैं बोल रही थी कि पाउडरी मिल्ड्यू अलग अलग पैथोजन से कॉज होता है ना। तो उसके अंदर जो ईडीएम है वो हमने मेन देखा जो कि एक्टोफाइटिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ है, ऐसा पाउडरी मिल्ड्यू दैट इज एंडोफाइटिक, तो वो ध्यान रखना लेवियूला। ओके, और बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है उसके अंदर जो फंगस है वो मोस्टली कौन सी आती है, दैट इज एंडोफाइटिक। ठीक है, ओके। एक टर्म आता है प्लेक्टिन काइमा। देखो ये जो है ना, इसमें मेजर क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल क्योंकि टर्म है तो आपको एटलीस्ट वो टर्म तो ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, प्लेक्टिन काइमा क्या है, सिंपल जो फंगल का टिश्यू है, जो भी फंगल के हमने जो देखा हाइफी है ना, हाइफी एक पर्टिकुलर नेटवर्क बना के तो माइसीलियम बना रहे हैं, ठीक है, वो तो उसका पूरा स्ट्रक्चर है। बट जो हाइफी है वो एक पर्टिकुलर स्मॉल टिश्यू, जब हम टिश्यू लेवल पे बात करें तो फंगल में क्या बनता है, उस टर्म को, फंगल के टिश्यू को हमने एक टर्म दे दी, दैट इज प्लेक्टिन काइमा। ओके, अब ये दो तरीके से हो सकता है, वन इज प्रोसन काइमा एंड वन इज स्यूडो पेरन काइमा। ठीक है, सिंपल ध्यान रखो, प्रोसन मतलब समथिंग दैट इज नॉट अचीविंग इट्स इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या होगा, वो लूजली वुवन है, ठीक है, मतलब दे आर नॉट एक दूसरे से वो पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए हैं। जबकि सूडो वर्ड से मतलब क्या हो गया कि वो फॉल्स है, मतलब वो दिखाएगा कि वो रियल टिश्यू है, बट एक्चुअली वो कंप्लीटली एक दूसरे में मर्ज हो चुका है। ये एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से एग्जाम्पल पता चलेगा, जैसे ये तो है प्रोसन काइमा एंड दिस इज स्यूडो पेनकाइमा। स्यूडो पेनकाइमा में देखो यहाँ पे आपको अलग अलग हाइफी नहीं दिख रहे ना, यहाँ पे तो सारे हम एक पर्टिकुलर हाइफी पूरा नेटवर्क दिख रहा है, तो दिस इज प्रोसन काइमा। बट इसके अंदर वो कंप्लीटली वुवन है और अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा हाइफा कहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये एग्जाम्पल हम किस में देखते हैं, स्क्लेरोशियम एंड राइजोमॉर्फ ऑफ आर्लिया। ओके, स्क्लेरोशियम और राइजोमॉर्फ क्या है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। किसके अंदर, जब हमें रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, जो भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं उसके अंदर वो सरवाइव करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता है, ताकि वो अपने अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, उसको स्टोर कर सके, और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस। ओके, सो दीज आर द टू टर्म्स। अब जो माइसीलियम है जो मैंने आपको बताया, उसमें आप टर्म याद रखना, सिंपल मोनोकैरियोटिक माइसीलियम मतलब मोनो मतलब एक, और कैरियन हम वी आर यूजिंग इट फॉर न्यूक्लियस। तो सिंपल, अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम मतलब दो न्यूक्लियस है, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। अब डाइकैरियोटिक कैन बी होमोकैरियोटिक और कैन बी हिट्रोकैरियोटिक। ओके, हिट्रोकैरियोटिक कब होगा, जब ये जो सेल बना है वो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल से बनेगा। ये ए न्यूक्लियाई है और इट इज बी न्यूक्लियाई, तब हम उसको क्या कह देंगे, हिट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, लेकिन होमोकैरियोटिक माइसीलियम इज व्हेन दिस इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब एक न्यूक्लियस उसी सेल के दूसरे न्यूक्लियस से बना है डिवाइड होके, तो हम उसको क्या कह देंगे, होमोकैरियोटिक। ठीक है, ये टर्म्स ध्यान रखना, वाई ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आगे आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना तब ये टर्म्स यूज में आती हैं, तो तब आपको ये इजी रहेगा। नाउ important part of the today's lecture is modification of mycelium। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये ध्यान से समझना, सिंपल है, मैं आपको पहले इसको डिटेल में समझाऊंगी एंड देन मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी कि जस्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैसे इनको याद करना है। ठीक है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ क्या है, रेजिस्ट, ये मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, जो भी इस मॉडिफिकेशन है ना, उनका दो पर्पस तो है, एक तो किसी ना किसी तरीके से इट विल हैव
न्यूट्रिशन, है ना। उसका एम है कि हम ऐसा कोई मॉडिफिकेशन बनाए कि हम फूड को स्टोर कर सके, न्यूट्रिएंट्स रख सके। और वो रखने का क्या मेन मोटिव है, जब ऐसा कंडीशन आ रही है कि हार्मफुल कंडीशन है, उसको जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो वो क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंट अपने अंदर डेवलप करनी है टू compete दैट अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। सो फॉर दैट वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज राइजोमॉर्फ। ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं, उसमें ऐसा होगा पर्टिकुलर फंगस में दीज मॉडिफिकेशंस विल बी सीन, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको काफी फंगस में दिख जाएगा। राइजोमॉर्फ है, तो राइजोमॉर्फ का जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज हनी फंगस, जो आर्मिलेरिया मिलाए है, ठीक है। इसको याद करने के लिए कैसे, देखो पैथोलॉजी आप समझोगे तो बहुत इजी बन जाएगा, बट इवेंचुअली आपको याद ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पैथोलॉजी में क्या है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, डेफिनेशंस याद रखनी है, पैथोजन के नाम याद रखने हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पैथोलॉजी इज लर्निंग पार्ट, ओके। बट अनटिल अनलेस आपको समझ नहीं आएगा तो इतना आपको क्रैम करना इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो इसको याद करने का क्या तरीका है, राइजोमॉर्फ है, आर से आर याद रखो, आर्मिलेरिया के अंदर आर है, इधर ये वाला आर हो गया, ओके। सो राइजोमॉर्फ का एग्जाम्पल इज आर्मिलेरिया मिलाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज राइजोमॉर्फ, इट इज अ एग्रीगेशन ऑफ हाईली डिफरेंशिएटेड हाइफी, जो कि क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखो यहाँ पे ये हाइफी ही है, बट हाइफी ने कैसा बना लिया है, रूट लाइक, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको प्लांट के रूट्स जैसे होते हैं ऐसे, है ना। तो ये रूट के फॉर्मेशन में इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, रूट लाइक पार्ट बना लिया। और इसका क्या लॉजिक है कि ये ज्यादा से ज्यादा जगह पे स्प्रेड हो सके। रूट की ग्रोथ कैसे स्प्रेड होती है, तो वैसे माइसीलियम ने अपने स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडिफाई कर लिया कि वो उसके रूट की तरह बना लिया, ताकि वो जल्दी और एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। और ये कैसी बन जाती है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है। डॉर्मेंट मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन है, सेल जो है वो अपने फूड को स्टोर कर लेती है और वो डिवाइड नहीं करती, इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, उसको हम डॉर्मेंट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। राइजो मतलब रूट और मॉर्फ मतलब रूट लाइक शेप बना लिया उसने। तो सिंपल अगर पूछ ले कि विच ऑफ दी स्ट्रक्चर आर मेड आर सीन इन फॉर्मेशन ऑफ रूट लाइक एग्रीगेशन, तो आंसर इज राइजोमॉर्फ, ओके। नाउ if asked rhizomorph का मेन पर्पस क्या है, टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन बाय फॉर्मेशन बाय क्रिएशन ऑफ रेजिस्टेंस नेचर। देन थर्ड क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि इट इज, इसका जो आइडियल एग्जाम्पल है वो कौन सा है, इट्स आइडियल एग्जाम्पल इज हनी फंगस दैट इज आर्मिलेरिया मिलाए, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन जो अभी आप में से किसी ने पूछा था, एप्रिनसोरिया ना। एप्रिनसोरिया भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम ही है। एप्रिनसोरिया क्या स्ट्रक्चर है, ये हेल्प करेगा जो स्पोर है, ठीक है, स्पोर है। स्पोर से हमें पता है, मैंने आपको अभी बताया था, फंजाई का हाइफी बनना शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे हाइफी बना, जो हाइफी है वो अपने आप को, हाइफी ऑफ कोर्स माइसीलियम हाइफी का ही तो स्ट्रक्चर है ना। तो वो माइसीलियम अपने आप को एक ऐसे बल्ब लाइक पोर्शन में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि क्या हेल्प करेगा, जो भी लीफ है, लीफ मतलब जो भी प्लांट पैथोजन के बारे में अगर हम बात करें तो उसको किस पे फीड करना है, प्लांट्स पर फीड करना है। तो प्लांट का जो सरफेस है, तो उसको उससे क्या करना पड़ेगा, पहले अटैच करना पड़ेगा, राइट। उसको अपने न्यूट्रिशन लेना है फंगस को। न्यूट्रिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि उसको क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा सेल में, है ना। इधर वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करे या बिटवीन द सेल्स पेनिट्रेट करे, ओके। और ऊपर भी है तो भी उसको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेबिलिटी वो प्रोड्यूस कर सके, एक अटैचमेंट ऑन द लीफ सरफेस। अगर वो लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है या अगर सीड है तो सीड पर, तो एक अटैचमेंट हो सके। वो अटैचमेंट या पेनिट्रेशन के लिए जो वो मॉडिफिकेशन करता है दैट इज एप्रिनसोरियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसी है, एक लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर इससे इन्फेक्शन पैग बनता है। इन्फेक्शन पैग क्या होगा, जो कि लीफ के अंदर, ये सपोज मैंने मान लो लीफ है, तो लीफ के अंदर इसने सबसे पहले ये जो है वो लीफ को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा,
ओके, सो दिस इज लीफ स्ट्रक्चर, है ना। तो लीफ के ऊपर ये जो बल्ब लाइक शेप है, लोब लाइक शेप है, ये तो एप्रिंसोरियम हो गया जो कि इस पे अटैच हो रहा है, और फिर बाद में वो इन्फेक्शन पैक बनाएगा जो इन्फेक्ट करेगा लीफ में, एंड लास्टली क्या बनेगा, हॉस्ट्रेरिया बनेगा। हॉस्ट्रेरिया क्या करेगा, फिर वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हर फंगस में आपको नहीं देखने को मिलेंगे ऐसे, आप जब क्लासिफिकेशन देखोगे इस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कि एप्रेंसोरियम किस में बनता है, ऐसे नहीं। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि इनका डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो है वो एक दूसरे से कैसे अलग है और उनका मेन फंक्शन क्या है। ओके, सो ये जो है एप्रेंसोरियम मोस्टली हमें किस में दिख जाएंगे, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट फंगस हो गई, है ना। आपने रस्ट में भी देखा होगा, लीव्स पे पूरे सिम्टम्स आते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू में भी आपको लीफ पे पाउडरी ग्रोथ दिखती है। तो वो कब बनेगा, क्योंकि उसने जो फंगस है उसने विद द हेल्प ऑफ एप्रेंसोरियम उसने अटैचमेंट किया है, और अटैचमेंट के बाद हॉस्ट्रिया बनाया जिससे उन्होंने न्यूट्रिशन को ले लिया। ओके, द थर्ड मॉडिफिकेशन इज हॉस्ट्रिया। वो भी माइसीलियम का ही पार्ट है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन को लेना। यही जो मैंने आपको बताया सबसे पहले, दिस इज हाउ लोब लाइक स्ट्रक्चर एप्रेंसोरियम बन गया, है ना। एप्रेंसोरियम से इन्फेक्शन पैग बना, जो कि इन्फेक्शन पैग मतलब जो कि शार्प होगा, पॉइंटेड शेप होगा, और अंदर इन्फेस्ट करेगा लीफ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो ऐसे राउंडेड जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज हॉस्ट्रिया। ओके, ये जो है इन्फेक्शन पैक जो आगे जाके स्ट्रक्चर बनाएगा वो हॉस्ट्रिया है। अब हॉस्ट्रिया हो सकता है विद इन सेल इन्फेक्ट करे, बिटवीन सेल इन्फेक्ट करे। ओके, सो दिस इज हाउ जो फंगस है वो न्यूट्रिएशन है उसको लेती है विद द हेल्प ऑफ हॉस्ट्रिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, यही जो एग्जाम्पल है, स्पोर है। स्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो वो क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। जर्म ट्यूब आगे जाके एप्रेंसोरियम बना रही है जो कि बल्ब शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ये एप्रेंसोरियम क्या कर रहा है, देखो अटैचमेंट कर रहा है होस्ट सेल पे। जैसे इसने अटैचमेंट किया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया इन्फेक्शन पेग, ये। ओके, और इस इन्फेक्शन पेग ने फिर इस इन्फेक्शन पेग से क्या निकले हैं, हॉस्ट्रिया, लाइक दिस। और ये हॉस्ट्रिया क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो दीज थ्री वर द मॉडिफिकेशंस। अब उसके आगे टोटल 6 मॉडिफिकेशंस आर देयर। पहला हमने क्या देखा, राइजोमॉर्फ, देन सेकेंड वन वाज एप्रेंसोरियम, थर्ड वन वाज हॉस्ट्रिया, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज राइजोइड, ठीक है। अब ये भी रूट जैसा स्ट्रक्चर है, राइजोमॉर्फ भी रूट जैसा है, और जो राइजोइड्स है वो भी रूट जैसा है, ठीक है। अब राइजोइड्स क्या है, ये क्विज डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेंगे, ऑफ कोर्स देखो रूट का क्या मीनिंग क्या होता है, प्लांट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं। सेम वही फंक्शन है फंगस के अंदर, बस फंक्शन उस जो भी सरफेस है उसके जो भी हमें हमारा ऑर्गन है, जो भी हमारा होस्ट है उससे अटैच करके एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ले रहा है। हॉस्ट्रिया नहीं बन रहे, अलग से को एब्जॉर्ब कर लेगा। हॉस्ट्रिया तो हमें कहाँ दिखते हैं, थोड़े अपर फंगस के अंदर, है ना। जैसे मैंने आपको रस्ट में बताया, फंगाई फंजाई में बताया, उसके अंदर आपको दिख रहे थे। बट जो राइजोइड्स हैं वो आपको किस में मिलते हैं, लोअर फंगस में, काइटाइडोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज के अंदर आपको जो न्यूट्रिशन लेंगे वो किसके थ्रू लेंगे, थ्रू राइजोइड्स। ओके, सो द फोर्थ मॉडिफिकेशन इज स्ट्रोमा। वही जो कोई पूछ रहा था कि कंपैक्ट स्ट्रक्चर जो बनता है फंगस का, वो एक्चुअली क्या होता है, दैट इज स्ट्रोमा, जो कि क्या है, आगे जाके फ्रूटिंग डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको फ्रूटिंग बॉडीज पढ़ाऊंगी। उसके अंदर आप देखोगे कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन लाइक स्ट्रोमा स्ट्रक्चर होता है,
फिर उसके थ्रू यहाँ पर आपको स्पोर्स जो है, यहाँ पे ये पूरा स्पोरेंजियम जैसे आप मान लो, तो ये स्पोरेंजियम बन के फिर ऊपर यहाँ पर जो है वो इसके, सॉरी दिस इज स्पोरेंजियोस्पोर, और यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है, तो ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्रूटिफिकेशन, फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है जो कि आगे जाके स्पोर्स बनाएगी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा है, तो इसका रोल किसके अंदर हो गया, इस मॉडिफिकेशन का रोल किसमें है, रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब अगर फ्रूटिंग बॉडी या ये जो स्ट्रक्चर है वो बिलो द एपिडर्मिस हो तो उसको हम सब स्टोमेटल स्ट्रोमा कह देंगे, और अगर वो पेरिफ्री ऑफ स्ट्रोमा पर है तब हम उसको क्या कह देंगे, पेरिथीशियल स्ट्रोमा। ठीक है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। ये पेरिथीशियम क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये अभी मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि जब हम आगे फ्रूटिंग बॉडीज पढ़ेंगे तो इसको इन डिटेल हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम दैट हैज इट्स पर्टिकुलर रोल इन व्हाट, इन रिप्रोडक्शन, और उसकी डेफिनेशन कैसी है, that is a compact or small cushion like mattress like structure। ठीक है, ये वर्ड्स को ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएंगे तो यही वर्ड्स आएंगे और आपको उन पे फोकस करना है। ओके, द लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम इज स्क्लेरोशियम। इसका भी रोल किसके अंदर है, रेजिस्टेंस के अंदर। जो आपने स्क्लेरोशिया देखे होंगे, जो व्हाइट कलर के हार्ट से ऐसे आपने देखे होंगे, जो डिजीज को ब्रिंजल और इन सब में इन्फेस्ट करते हैं, क्लस्टर बीनिया इन सब में जो स्क्लेरोशिया बनता है, राइट, तो वो ये है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरोशियम ऐसे यहाँ पर ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसे डेंस और हार्ड स्क्लेरोशियम एक एग्रीगेशन, ठीक है, राउंड कलर के ऐसे आपको थिक सेल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज फॉर रेजिस्टेंस। और इसका क्या मतलब है, सिंपल, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या करते हैं, ये डोरमेंट स्ट्रक्चर है। देखो जब फेवरेबल, अगर स्पोर सीधे रहेगा, स्पोर कब जर्मिनेट होगा, जब उसको सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी है ना, और उसका जो आइडियल कंडीशन है वो उसको मिलेंगी। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन नहीं है और स्पोर ऐसे ही रहा तो फंगस क्या होगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो फंगस क्या करती है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है और ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर बना लिया जो कि फिजिकल और केमिकल कंडीशंस, मतलब जो एनवायरनमेंट कंडीशन अनफेवरेबल है तब भी वो डोरमेंसी में चला जाता है और ऐसे स्पोर्स बना लेता है, हार्ड स्पोर्स। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सिंपल वो क्या करेंगे, इनके अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्म ट्यूब बन जाएगी और वो आगे माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, सो दीज ऑल वर द different modifications of mycelium that are being asked in the exams as well. So you have to focus on that, what are different modifications and what is the purpose of each modification. Along with that, in this slide, like Austria में एक मैंने देखा है कि shape के basis पर भी पूछते हैं, like knob like Austria are found in Albugo, elongated Austria किसके अंदर है, एरिसिफी और यूनिक्विला। ठीक है, जो पाउडर मिल्ड्यू का हो गया। फिंगर लाइक हॉस्ट्रिया किसके अंदर है, तो पेरिनोस्पोरा के अंदर। जब एग्जाम्पल्स की बात आती है तो ऑल यू हैव टू इज दैट यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कौन सा मॉडिफिकेशन क्या है, वो सब समझ आएगा, बट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक तो जो मेरी स्लाइड्स हो उनके जो भी एग्जाम्पल्स है उनको अलग से कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करो। ठीक है, दैट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे आर्मिलेरिया अगर आपके माइंड में आए तो आपको सीधे स्ट्राइक हो जाए कि वो राइजोमॉर्फ बनाता है। ठीक है, उसी तरह से एक तो ये तरीका है। एडिशनल टू दैट, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तब भी आपको बहुत सारे दिखेंगे जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखेंगे पैथोजेंस का, तो वो भी कैसे आपको, उन्हीं डायरी में एक अलग से नोटबुक बना लो छोटी, जिसमें आपको पैथोजेंस के नाम याद रखने। ऑफ कोर्स देखो इट इज टफ, और हो सकता है कि मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस ही आए उसके एग्जाम्पल पर, बट आजकल क्या है मैचअप में आने लग गए हैं। ठीक है, से मैचअप्स के अंदर मोस्टली स्टेटमेंट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि डेफिनेशन के बेस पर, कंसेप्चुअल बेस पर। ठीक है, बट मैचअप में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे
आपको ऐसे मिलेंगे, ये वाला जो है पर्टिकुलर ये कौन सा पैथोजन बनाता है। जैसे मान लो इसी मॉडिफिकेशन पर अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, राइजोमॉर्फ लिख दिया मैंने एक साइड, फिर स्क्लेरोशियम लिख दिया मैंने एक साइड, स्ट्रोमा लिख दिया और आगे पैथोजन के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए और बोल दिया ए का 1 B2 और वो ऐसे करके आप मैच करो। ओके, सो फॉर दैट आपको याद करना है और हमेशा ध्यान रखो मैचअप्स को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आपको एक या दो भी मैचअप आते हैं तो हो सकता है आपका वो क्वेश्चन क्लिक कर जाए। ओके, मैचअप्स सबसे इजी और हमेशा मोस्टली सही ही होते हैं, सो ऑलवेज गो फॉर मैचअप्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन और हाँ, दिस इज टुडे इज योर लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग जरूर एनरोल कीजिए। आप लोगों ने डेमो क्लासेस ली होंगी। In next lectures, we'll be continuing this fungi.